So guys, next we come to shift in demand curve. Shift in demand curve. पहला जो हमने पढ़ा था ना वो था movement along the curve. The first aspect that we studied was movement along the curve. Now what we are trying to study is shift in the curve itself. हमारा जो curve है यही curve shift कर जा रहा है ना. So अगर मुझे ये समझाना है, अगर ये मुझे समझना है, right, what I have to understand is that I know my demand curve will always be downward sloping. If I draw a curve between price of the commodity and quantity demanded, then it is going to be downward sloping. Whenever the prices increase, automatically quantity demanded decreases. Now, see, what I want to understand is, मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं डिमांड फंक्शन लिखूँ, फंक्शन तो आप समझते हैं, यू हैव स्टडीड अलजेब्रा, राइट. सो अगर हम फंक्शन लिखें y इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में, क्वांटिटी डिमांडेड किसका फंक्शन है? इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस इटसेल्फ, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम y, राइट, so on and so forth. So in my first part, when I was drawing movement along the curve, I was trying to find the relationship between price of commodity and quantity demanded, and I was keeping all these factors as constant. ये कर रहा था simply. ठीक. Now what I want to do is I want to keep this price as constant now. ठीक, ये तो मेरा पहला वेरिएशन था to find out movement along the curve. In my second variation, what I want to do is I want to keep my price as constant now, and I want to see that if these variables, ये जो हमने variables लिखे थे, do they have the potential to alter quantity demanded? That if I start varying price of related good, if I start varying, let's say, income, if I start varying, let's say, choices and trends, if I start varying population, अगर मैं इन सब पैरामीटर्स को चेंज करूं तो क्या मेरा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा? ठीक है, चेंज होगा. अगर चेंज होगा, इफ इट इज चेंजिंग, देन इन व्हाट मैनर इज इट चेंजिंग? ठीक है. सो हम क्या कर रहे हैं? वी आर कीपिंग द प्राइसेस टू बी कांस्टेंट हियर. ठीक है. तो इसको सिंपली अब आप समझने की कोशिश करना है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. What we do is we first of all we draw what we know, right? So हमको पता है कि भाई y axis पर प्राइस आता है, and we know that quantity demanded is taken on x axis. So this is my quantity demanded, right? And I know that my downward sloping curve is demand curve D. My downward sloping curve is demand curve D. This is my demand curve D. बना दिया, right? Now arbitrarily I can choose any price. So मैंने क्या किया? मैंने अब price choose किया. So let me choose a price, right? So let's say I choose this P as price. Constant कर दिया price को. This is my Q, quantity Q according to the curve. Now I want to change other parameters, right? So हमने जो यहाँ पे other factors लिखे थे, other factors, right? Price of related good, income, etc. So I alter these other factors. मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इनको increase decrease करा रहा हूँ. ठीक. और इस increase decrease के कारण क्या होता है? Because of this increase decrease, automatically my quantity demanded may increase or it may decrease. Quantity demanded जो है वो बढ़ जाता है या फिर घट जाता है at the same price, at the same price itself, at the same price itself. Now if my quantity demanded increases or decreases at the same price, increase would mean, increase का अर्थ क्या होगा? Increase would mean that Q से increase का मतलब क्या है? right तरफ, right? So Q1 की तरफ चला गया, Q1 is increase, right? So I can simply draw again a perpendicular to meet this point, है ना? ये बना सकते हैं हम perpendicular ऐसे. Now this point where it crosses, ये जो point आ रहा है जहाँ पर ये cross कर रहा है ना? I can draw a curve here like this.
लाइक दिस आई कैन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन कर्व, ये सुनो आप स्केल से बनाएंगे तो आपको बहुत इजीली बन जाएगा, राइट। सो फ्रॉम डी इट मूव्स टुवर्ड्स द राइट एंड गिव्स मी डी डैश। सो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि जब क्वांटिटी इंक्रीज करती है, ठीक है, रिलेशन इंपॉर्टेंट है, whenever quantity demanded increases automatically the demand curve moves towards the right. Demand curve shifts towards right. आप कितना भी इंक्रीज लेके देख सकते हैं, राइट। आप क्यू के राइट साइड में कितना भी ले लो, राइट। आप जब भी इसको इंक्रीज करोगे कर्व इसके ऊपर ही बनेगा, राइट साइड में ही बनेगा, राइट, लेफ्ट साइड में नहीं बन सकता, ठीक है। एंड देयर बाय आई कैन से दैट व्हेनेवर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस माय डिमांड कर्व बेसिकली शिफ्ट्स टुवर्ड्स राइट, ठीक है। और अगर मैं ऑपोजिट केस ले लूं, इफ आई टेक द ऑपोजिट केस, लेट्स से आई टेक द ऑपोजिट, so I take that my quantity demanded instead of increasing it decreases. ये वाला केस ले लेते हैं, that my quantity demanded instead of increasing it decreases. So decrease would mean towards left. So let me take this as Q2. Q2 के हिसाब से मैंने क्या किया, I have again drawn a perpendicular here. मैंने एक फिर से perpendicular बना दिया। perpendicular जैसे ही बनाया, right, now I can see that my curve basically moves towards the left, thereby giving me d double prime. Now I can conclude, I can say from this that when quantity demanded decreases, जब quantity हमारी बाजारी मांग जब घटती है, when quantity demanded decreases, my demand curve shifts towards the left. Shifts towards the left. Guys, please understand ये important क्यों है. When I take you to market dynamics ना, यही सारी कहानी होने वाली है. जब आप देखते हैं आज की डेट में कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए, है ना, जब हम देखते हैं क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, कम होंगे, तो सारी कहानी यहीं से समझ में आ जाती है. आपको सिंपली क्या देखना होता है, यू हैव टू सिंपली लुक एट वेदर द इंटरनेशनल डिमांड इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. द मोमेंट you start moving these curves, the moment you start understanding this, everything becomes clear. ठीक है, चलो वहाँ पर भी ना आए समझ, वहाँ पर भी अगर आपको लगे कि चलो ये तो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से आ जाएगा. सी व्हेन वी गो टू द टॉपिक एक्सचेंज रेट, क्योंकि वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको. सो व्हेन वी गो टू द टॉपिक एक्सचेंज रेट एंड व्हेन वी स्टार्ट टू अंडरस्टैंड एक्सचेंज रेट डायनामिक्स, अगेन वी विल बी यूटिलाइजिंग दिस सेम प्रोसेस इटसेल्फ, है ना. यही प्रोसेस में एंगेज करके हमको वहाँ पर फॉरेन करेंसी के लिए देखना होगा कि फॉरेन करेंसी इनफ्लो बढ़ रहा है, घट रहा है, राइट, और उसी के बिहाफ पे एक्सचेंज रेट निकालते हैं. सो इस कॉन्सेप्ट की नीड बहुत ज़्यादा है, ये बेसिक है बिल्कुल इकोनॉमी का, ठीक है. तो क्वांटिटी डिमांडेड जब इंक्रीज करता है तो डिमांड कर्व राइट की ओर मूव करता है, एंड व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस द डिमांड कर्व शिफ्ट्स टुवर्ड्स द लेफ्ट इटसेल्फ. ठीक, इसी को हम कहते हैं दिस इटसेल्फ. व्हेन यू फाइंड दैट डिमांड कर्व इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट, दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. शिफ्ट इन डिमांड कर्व. Now in a very simple manner I have explained you that the curve is going to shift, है ना. ये तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई कर्व में शिफ्टिंग होगी, बट क्वेश्चन ये है that why will the curve shift. कर्व की शिफ्टिंग तो समझ में आ गई आपको कि क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज किया, डिमांड कर्व राइट की ओर मूव कर गया, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज किया, डिमांड कर्व लेफ्ट की ओर मूव कर गया. बट क्वेश्चन ये है that why will quantity demand increase or decrease now, right? So we just need to know these other factors and their relation, right? So जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर I can take in income as a parameter, let's say Y, right? और मैं क्या करता हूँ, मैं वही दो गुड्स लेके आ जाता हूँ आपके लिए. Remember normal and inferior, so let me take normal goods. Let me take the case of normal goods. So what did I teach you for normal goods? That whenever income increases, जब भी income बढ़ेगा, right, automatically quantity demanded increases, and when income levels decrease, quantity demanded decreases. आपको नहीं लगता यही कहानी हो रही है यहाँ पर भी? That at constant price, whenever income levels increase or decrease,
वी मे फाइंड क्वांटिटी डिमांडेड टू बी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसका मतलब क्या है कि भाई इनकम अपने आप में एक पोटेंशियल फैक्टर है, दिस इज अ पोटेंशियल फैक्टर विच कैन ऑल्टर क्वांटिटी डिमांडेड बाय अ कंज्यूमर इटसेल्फ। ठीक है, आप इन्फीरियर के लिए भी ले सकते हो, ऑपोजिट रिलेशनशिप ले सकते हो। पॉइंट ये था कि क्वांटिटी डिमांडेड शुड इंक्रीज और डिक्रीज, वहां पर केस ऑपोजिट हो जाएगा कि भाई जब इनकम लेवल मेरे, है ना, इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस फॉर इन्फीरियर, अगर हम इन्फीरियर के लिए बनाना इसको शुरू कर दें, इंफीरियर गुड्स के लिए क्या होगा, ऑपोजिट केस होगा ना, दैट विद डिक्रीज इन इनकम देयर मे बी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। व्यक्ति क्या कर रहा है, जब इनकम लेवल्स घट रहे हैं तो इंफीरियर वस्तुएं कंज्यूम कर रहा है, बट व्हेन द इनकम लेवल स्टार्ट टू राइज ही मे सब्सटीट्यूट दीज गुड्स फॉर मच बेटर, सो इनका डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड ऑटोमेटिकली घट जाएगा। सो ऑपोजिट रिलेशनशिप दिख रहा है, बट पॉइंट ये था कि हमें ये चाहिए था, दिस इज व्हाट वी वांटेड, राइट, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अब वो आ गया हमारे पास, राइट। सो दिस इटसेल्फ वी कैन से इनकम लेवल इटसेल्फ इज अ पैरामीटर बेस्ड ऑन विच वी विल फाइंड quantity demanded to be increasing decreasing, and accordingly as quantity demanded increases, जब increase का केस होगा तो क्या होगा, demand curve will shift, demand curve will shift rightward, whereas when quantity demanded decreases then demand curve will shift leftward. बस this is what you need to remember, इतनी बात आपको याद रखनी है, that's it। ठीक है, नेक्स्ट गाइस वी कम टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मैं पहले आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ इलास्टिसिटी क्या है। आई थिंक एज अ चाइल्ड ऑल ऑफ यू मस्ट हैव प्लेड विद रबर बैंड्स। बचपन में हमको रबर बैंड मिलता था, हम स्ट्रेच करके देखते थे उसे, राइट, और स्ट्रेच करके क्या देखते थे, आवर ऑब्जेक्टिव वॉज दैट व्हेन वी स्ट्रेच इट एट व्हाट पॉइंट इज इट गोइंग टू ब्रेक अवे। आप भी उसको तब तक खींचते थे, आपको लगता था ये टूटने वाला है, आप कम कर देते थे, राइट। सो हम क्या करते थे, वी यूज टू टेक दिस रबर बैंड, है ना, और इसको स्ट्रेच करते थे, दोनों एंड से फोर्स लगाते थे, फोर्स लगाते थे, राइट। फोर्स लगाने के बाद देखते थे कितना स्ट्रेच हो गया, लेट्स से इतना स्ट्रेच हो गया, राइट। सो बाय अप्लाइंग लेट्स से दिस मच फोर्स, कोई भी ले लो, कुछ भी ले लो, इतने n न्यूटन की फोर्स लगा दी आपने, x न्यूटन ऑफ फोर्स, हाउ मच वाज इट चेंजिंग इन शेप, कितना लेंथ में परिवर्तन आ गया, उसी के बिहाफ पे इलास्टिसिटी मेजर करते थे उसकी, है ना। यहाँ पर भी यही कहानी है, यहाँ पर भी यही चीज़ देख रहे हैं, राइट। आपको क्या नज़र आ रहा है, यू कैन सी दैट वी हैव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड आवर ऑब्जेक्टिव इज we want to understand that this quantity demanded, how much does it change when other factors, right, or let's say price also, ये जो quantity demanded का function था, right, function of price of related good, income, right, एटसेट्रा एटसेट्रा, कि जब ये इंडिविजुअली पैरामीटर्स हम चेंज करेंगे, राइट। सो लेट्स से आई इंक्रीज द प्राइस बाय एक्स अमाउंट, 10% से इंक्रीज किया, सो बाय व्हाट परसेंटेज डज माय क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस, राइट। सो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली जो फैक्टर्स हैं उनको ऑल्टर कर रहे हैं, फैक्टर्स ऑल्टर करके हम देख रहे हैं कि हाउ मच इज गोइंग टू बी द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब जितने फैक्टर्स उसी के हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड का इलास्टिसिटी निकल आएगा, राइट। So price elasticity, when you alter the prices, you will try and find out how much is the change in quantity demanded. Then income elasticity means you change the income level and you find out how much is the change in the quantity demanded. Cross elasticity का मतलब, cross elasticity is related to the related goods. So cross elasticity के केस में आप क्या करते हो, price of related goods alter करते हो, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज ऑल्टर्ड, इसको चेंज करते हैं। सो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स विल बी चेंज्ड टू फाइंड आउट हाउ मच क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस। ठीक है,
मैं इसको सिंपल रखूंगा. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू प्राइस इलास्टिसिटी विद यू. यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द टू ऑल्सो ऑन योर ओन. ठीक है. सो लेट्स बिगिन विद प्राइस इलास्टिसिटी. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज सिंपली एन इकोनॉमिक मेजर of the change in the quantity demanded which is quantity demanded or purchased of a product in relation to its price change. मतलब जब भी हम प्राइस चेंज करेंगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कैसे ऑल्टर करेगा. सो इसको लिखते कैसे हैं. ये तो हो गया इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी किसका निकाल रहे हैं, डिमांड का. सो वी आर ट्राइंग टू मेजर प्राइस इलास्टिसिटी. सो प्राइस लेफ्ट साइड पे, दिस विल बी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. फॉर्मूला क्या होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज गोइंग टू बी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब जिसके रिस्पेक्ट में देखना है उसको डिनोमिनेटर में रख दो और जिसके लिए निकाल रहे हो वो न्यूमरेटर में रख दो. सिंपल. ठीक है. परसेंटेज कैसे निकालते हैं. सो डेल्टा क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय क्वांटिटी डिमांडेड इनिशियल, जो इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड है वो ले लिया, इनटू 100 डिवाइडेड बाय डेल्टा पी चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय पी इनिशियल प्राइस इनटू 100. काट पीट दो सब कुछ. राइट. यू कैन क्रॉस ओवर ऑल ऑफ दिस. सो व्हाट डू यू गेट, यू गेट delta q quantity demanded divided by delta p multiplied with p initial into q initial. quantity demanded initial denominator में और price initial price आपका numerator में. now remember this is more like a constant. ये factor तो constant है, ये तो बेचारी initial values हैं. राइट. इनका तो कोई दोष ही नहीं. सारी कहानी किसकी है, इसकी है. डेल्टा क्वांटिटी डिमांडेड बाय डेल्टा पी. नाउ what I'll do is I'll urge you guys go back. right. अब वापस जाओ, you go to the slope of demand curve. एक बार जरा इसको जाके देखो slope of demand curve क्या लिखवाया था. so try and go and look back to your slope of demand curve. slope of demand curve. जब आप slope of demand curve देखेंगे तो आपको slope of demand curve में क्या नजर आएगा, क्या था. slope of demand curve was delta p by delta q quantity demanded and this parameter itself was coming out to be negative. याद करो, यही निकल के आ रहा है, यही निकल के आ रहा है ना. ठीक. अब कैन यू फाइंड एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द टू. कुछ नजर आया. राइट. वी कैन सी दैट दिस इज नथिंग बट 1 बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. ये जो पैरामीटर लिखा है हमने, क्या है ये, दिस इज नथिंग बट 1 बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ओनली. 1 बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व ओनली, है ना. और ये भी नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि वो नेगेटिव में है तो ये भी नेगेटिव में आएगा. राइट. इनटू अ कांस्टेंट. ठीक. यहां तक तो क्लियर. Now what I will do is because elasticity cannot be negative in its sense, हम क्या करते हैं, हम इसको मॉडुलस फंक्शन में रख देते हैं. We basically keep this parameter into मॉडुलस फंक्शन. ठीक है. तो मॉडुलस फंक्शन में रख दो इसको. So this was coming out to be 1 by slope of demand curve into a constant factor. constant factor क्या था हमारा, it was delta q by delta p था ना. so delta q के हिसाब से this comes out to be p initial divided by q initial. ठीक है. p initial by q initial. so याद रखना कि इसको हमने कांस्टेंट मान लिया, कांस्टेंट पैरामीटर है. ये आ गया 1 बाय स्लोप ऑफ डिमांड कर्व. राइट. एंड नाउ आई विल टेक अ मॉड ऑफ दिस. मैं इसका पूरे का मॉड ले लेता हूँ. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आई टेक अ मॉड ऑफ दिस पैरामीटर. नाउ दिस मीन्स इट विल ऑलवेज गिव मी वैल्यूज फ्रॉम 0 एंड अबव. राइट. मतलब 0 से नीचे इसकी वैल्यू नहीं हो सकती, लेफ्ट हैंड साइड नहीं जाएगा, नेगेटिव में नहीं जाएगा. राइट.
सो पॉसिबिलिटी क्या है, व्हाट कैन बी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो देर आर अ फ्यू वेरिएशंस हेयर, कुछ वेरिएशंस है राइट. जब हम इसे निकालेंगे तो हमको मिलेगा कि 5 केसेस हमें इन टोटल मिलता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए. ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए. एंड व्हाट आर दीज 5 केसेस, वो भी देख लेते हैं. So let's look at these 5 cases. So you will find that price elasticity of demand it can be, case number 1 it can be equal to 0, case number 2 it can be greater than 0 and less than 1. Case number 3 will be, it can be equal to 1. Case number 4 can be, it can be greater than 1 and less than infinity. And case number 5 shall be that it can be equal to infinity itself. So ये कुछ 5 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं यहाँ पर राइट फॉर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है, एक एक करके फटाफट इसको देख लेते हैं एंड विल ड्रॉ द कर्व्स. लेट्स स्टार्ट विद केस नंबर 1. केस नंबर 1 में क्या हो रहा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is equal to 0. Price elasticity of demand is equal to 0. Price elasticity of demand equal to 0 means that my delta Q, quantity demanded by delta P into a constant, इसका मॉडुलस ले लेते हैं, into a constant is coming out to be 0. भाई constant तो 0 नहीं है, initial price initial quantity तो 0 नहीं है right. बट ये पैरामीटर 0 का मतलब क्या होगा, delta QD by delta P इक्वल टू 0 मीन्स कहता है क्या है, इसका मतलब न्यूमरेटर 0 है, विच मीन्स माई डेल्टा क्वांटिटी डिमांडेड इट सेल्फ इज इक्वल टू 0. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ही 0 निकला है राइट. अब अगर कर्व पर बनाने जाएंगे इसे कैसा दिखेगा, इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ दिस ऑन अ कर्व, क्वांटिटी डिमांडेड का कर्व, ये प्राइस है राइट. तो प्राइस कितना भी चेंज करे क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं है. प्राइस कितना मर्जी चेंज करे क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट चेंजिंग एट ऑल. तो आप एक नंबर फिक्स कर दो. लेट्स फिक्स दिस नंबर पैरेलल टू वाई एक्सिस. ये वाई एक्सिस के पैरेलल जो आया राइट, ये होगा मेरा, दिस इज गोइंग टू बी माई केस नंबर 1. दिस इज माई परफेक्टली इनइलास्टिक गुड. ये मेरा कैसा गुड है, दिस इज माई परफेक्टली इनइलास्टिक गुड. इनइलास्टिक गुड क्यों, नो मैटर हाउ मच प्राइस आई चेंज, मैं कितना भी प्राइस को चेंज कर लूँ क्वांटिटी डिमांडेड शिफ्ट ही नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये क्या है, दिस इज अ परफेक्टली इनइलास्टिक गुड. एग्जाम्पल कैन बी वाटर, मेडिसिन, नेसेसिटी गुड्स सारे यही हैं राइट. दिस इज नथिंग बट माई नेसेसिटी गुड्स. सो नेसेसिटी गुड्स के केस में यही कहानी रहती है कि प्राइस परफेक्टली इनइलास्टिक रहेगा, प्राइसेस चेंज करो, आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज नहीं होगा. कमिंग टू केस नंबर सेकेंड. केस नंबर सेकेंड में क्या था, दैट माई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 0 बट इट इज लेस देन 1. 0 से बड़ा है, लेस देन 1 है. ठीक है, सो अकॉर्डिंगली अब तो इतनी बात समझ में आ गई, डेल्टा क्यू डी बाय डेल्टा पी शुड बी लेस देन 1, ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 वाला रिलेशनशिप मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता जितना ये वाला रिलेशनशिप मैटर करेगा ना. ये कहानी सारी बता देगा, इट विल डिफाइन द एंटायर स्टोरी राइट. सो आई कैन से माई डेल्टा क्यू डी इज लेस देन डेल्टा पी, तभी ये ट्रू होगा.
दिस मीन्स माई क्वांटिटी डिमांडेड इज़ वेरी लेस देन चेंज इन प्राइसेस, मतलब आप प्राइसेस को बहुत हैवी मार्जिन से चेंज कर रहे हो, बट क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन. क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ वेरी स्मॉल मार्जिन, विच मीन्स द गुड इज स्टिल इन इलास्टिक बट नॉट परफेक्टली इन इलास्टिक. गुड क्या है, अभी भी इलास्टिक तो है, अभी भी इन इलास्टिक है, सॉरी, द गुड इज स्टिल इन इलास्टिक बट इट इज नॉट perfectly inelastic. So these are inelastic goods. These are inelastic goods. ठीक है. So if I want to draw a curve, अगर मैं curve बनाऊं इसके लिए, ठीक, सो वही सेम स्टोरी, क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑन वाई एक्स एक्सेस एंड प्राइस इज ऑन वाई एक्सेस. अब आप इसके बीच में कर्व बना रहे हो, राइट, यू आर ड्राइंग अ कर्व फॉर दिस. सो जब आप कर्व बनाएंगे आपको क्या मिलेगा, आई नो माई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. मेरा जो डिमांड कर्व रहता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है, राइट. मुझे चाहिए कि कर्व जो है क्वांटिटी डिमांडेड कम मार्जिन से चेंज हो और मेरा चेंज इन प्राइस ज़्यादा हो, चेंज इन प्राइस ज़्यादा हो, राइट. सो माई शेप ऑफ द कर्व इज गोइंग टू बी समवॉट लाइक दिस, समवॉट लाइक दिस. कैसे बनाया, आप इस पर मार्क करके देखो, राइट. यू टेक इट टू बी P1 P2, दोनों का डिफरेंस कितना है, डेल्टा P, चेंज इन प्राइस. अकॉर्डिंगली व्हेन यू ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर देखो आप, है ना. आई फाइंड दिस इज माई डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू, और क्या मिल रहा है, डेल्टा क्यू इज लेस देन डेल्टा पी. यही कंडीशन मिल रही है कि ये चेंज इन क्वांटिटी कम है चेंज इन प्राइस से, है ना, चेंज इन प्राइस से. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली आई कैन सी दिस रिलेशन होल्ड्स. सो आई विल गेट अ स्टीपर कर्व हेयर. मुझे क्या मिल रहा है, स्टीपर डिमांड कर्व मिल रहा है, स्टीपर डिमांड कर्व. आई गेट अ स्टीपर डिमांड कर्व. ठीक है. और ये कैसा गुड है, दिस इज स्टिल एन इनइलास्टिक गुड दैट वी मे चेंज द प्राइस बाय हेवी मार्जिन बट द क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स मोर और लेस द सेम ओनली, है ना, बहुत कम मार्जिन से चेंज होगा. गाइज नेक्स्ट जो है केस नंबर 3, उस केस में क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1. Price elasticity of demand is equal to 1 means that my change in quantity demanded divided by change in price is equal to 1. ठीक, इसका मतलब क्या है, दोनों ही इक्वल नज़र आ जाएंगे. So change in quantity demanded is equal to change in price. Change in price, this means that as price increases or decreases, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहा है या घट रहा है ना. सो गुड मतलब एक तरह से यूनिटरी इलास्टिक है. सो दिस इज अ केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक गुड्स. यूनिटरी इलास्टिक गुड्स मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है. जितना आपने प्राइस चेंज किया, यू चेंज द प्राइस बाय 10%, क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो इंक्रीजेज डिक्रीजेज बाय 10%. ठीक है. सो इस केस में इफ आई वॉन्ट टू ड्रॉ द कर्व between price and quantity demanded, price and quantity demanded, what do I get, I will find this to be my demand curve, है ना. So आप यहाँ पे ड्रॉ करके भी देख सकते हैं. You can find out if this is my delta P, this should be equal to my delta Q. दोनों बराबर आने चाहिए एक तरह से ना. डेल्टा पी एंड डेल्टा क्यू शुड कम आउट टू बी मोर और लेस इक्वल. ठीक है. थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है हमसे, बट इफ़ यू ट्राई एंड ड्रॉ 135 डिग्री का लाइन ना, अगर आप इसको इस एंगल को 135 बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा. ठीक है. वो है रैशनल यहाँ पे. ठीक है. सो दिस इज यूनिटरी इलास्टिक गुड्स जहाँ पर हम चेंज कर रहे हैं प्राइस को 10% से, क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो चेंजेस बाय ऑलमोस्ट 10%. गाइज नेक्स्ट वी मूव टू केस नंबर 4. केस नंबर 4 में हम देख रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1 से तो बड़ा है लेकिन इन्फिनिटी से कम है. ठीक है.
सो अगर मैं ये केस मान लूँ, राइट, यही रिलेशनशिप निकल आएगा मेरा. सो डेल्टा क्वांटिटी डिमांडेड बाय डेल्टा प्राइस इज एक्चुअली ग्रेटर दैन 1. ठीक है, ये है मेरा रिलेशन. नाउ दिस मीन्स दैट माई डेल्टा क्वांटिटी डिमांडेड शुड बी ग्रेटर दैन चेंज इन प्राइसेस. ठीक है ना. डेल्टा क्यू डी मस्ट बी ग्रेटर दैन डेल्टा पी. चेंज इन प्राइस से बड़ा निकल के आना चाहिए. ठीक. सो इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस, अगर मैं इस कर्व को ड्रॉ करूं, ठीक है, ये हो गया मेरा क्वांटिटी डिमांडेड, ये हो गया मेरा प्राइसेस. ठीक. आई वांट टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बहुत हैवी मार्जिन से इंक्रीज कर रहा है इवन विद अ स्मॉल चेंज इन प्राइस. सो नाउ माय डिमांड कर्व इज गोइंग टू बी relatively flatter. अब कर्व कैसा आएगा? अब कर्व ना फ्लैटर आएगा. ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट विद अ डिफरेंट कलर. सो द कर्व विल अपीयर टू बी फ्लैटर. कुछ ऐसा कर्व आएगा. ठीक है. सो यू कैन चूज 2 पॉइंट्स. आपने 2 पॉइंट्स चूज किए. क्या दिख रहा है? दिस इज माई डेल्टा पी, दिस इज माई डेल्टा क्यू. डू यू फाइंड डेल्टा क्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा पी? रिलेशनशिप सेटिस्फाई कर रही है. अब गुड क्या है? अब गुड लचीली हो गई है. राइट. क्वांटिटी डिमांडेड इज इलास्टिक नाउ. राइट. सो दिस इज अ केस ऑफ इलास्टिक गुड्स. मतलब अब कंज्यूमर प्राइस सेंसिटिव हो गया है. कंज्यूमर हैज बिकम प्राइस सेंसिटिव. This also means that there are readily available substitutes. कुछ 1-2 substitutes हैं जो completely consumer की need को satisfy कर जाएंगे. And that is why if you are changing the price by very small margin, आप छोटा सा increase कर रहे हो price में, consumer तुरंत switch कर जा रहा है. Consumer is switching over to some other product, right? And thereby the demand may decrease very heavily by small change in price. This is my elastic goods. Next we come to the last case number 5. Case number 5 में क्या हो रहा है? My price elasticity of demand is equal to infinity itself. Infinity के बराबर आ रहा है. इसका मतलब ये है कि डेल्टा क्यू डी बाय डेल्टा पी मस्ट बी इक्वल टू इन्फिनिटी. ठीक. अब ये इन्फिनिटी कब आएगा? दिस विल कम आउट टू बी इन्फिनिटी इफ माई डेल्टा पी इज इक्वल टू 0. अगर चेंज इन प्राइस 0 है तभी तो डेल्टा क्यू डी बाई डेल्टा पी इन्फिनिटी आएगा. राइट. सो इफ आई वांट टू ड्रॉ दिस, अगर मैं इसको कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो कैसा मिलेगा कर्व? कुछ इस प्रकार का. सो दिस इज माई प्राइस एक्सिस, दिस इज माई क्वांटिटी डिमांडेड एक्सिस. राइट. नाउ प्राइसेस आर नॉट गोइंग टू चेंज, प्राइसेस विल रिमेन फिक्स्ड. प्राइस हो गया फिक्स्ड, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो जाएगा. क्वांटिटी डिमांडेड में इंक्रीज और डिक्रीज. राइट. सो लेट्स से दिस इज माय क्वांटिटी डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांडेड का ये केस निकल के आया. इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंज कर रहा है बट प्राइस रिमेन्स फिक्स्ड. तो यहाँ पर डेल्टा पी इज 0 एंड देयर बाय क्वांटिटी डिमांडेड कैन स्टिल वेरी ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स में भी. ठीक है ना. सो आप ये कह सकते हो कि भाई ये क्या है? दिस इज अ perfectly elastic good that even if there is no change in price, there are potential replacements, there are readily available substitutes which can alter the demand of the good itself. गुड के डिमांड को कम ज़्यादा कर सकते हैं जबकि गुड के अपने प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है. ठीक है ना. मतलब कंपेटिटर्स आ सकते हैं, फ्री एंट्री एग्जिट हो रही है मार्केट में, कंपेटिटर्स आर कमिंग इन. कंपेटिटर्स के आने से ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? गुड की मांग घट रही है या बढ़ रही है समय के साथ. ठीक है. सो दिस इज माय परफेक्टली इलास्टिक गुड्स. गाइज, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी. ठीक है. सो अभी तक हमने जो किया है, वी हैव लुक्ड एट डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी. वी आर गोइंग टू डू द सेम फॉर सप्लाई ऑल्सो. नाउ रिमेंबर, व्हेन यू टॉक ऑफ सप्लाई, जब हम सप्लाई की बात करते हैं, when we talk of supply,
right? We take in producer's viewpoint. We take in producer's viewpoint. अगर आपको याद हो, right? When I started with demand, I told you there that we are only going to consider consumer's viewpoint here. एक उपभोक्ता के नज़रिए से मार्केट को देख रहे हैं कि प्राइस बढ़ा तो क्या हुआ, है ना? डिमांड बढ़ाऊं, ज़्यादा खरीदूं या कम खरीदूं, ठीक? इनकम बढ़ी, ज़्यादा खरीदूंगा कम खरीदूंगा, राइट? सो वी वर टेकिंग इन कंज्यूमर्स व्यू पॉइंट देयर. बट हेयर, है ना, इन सप्लाई व्हाट आर वी डूइंग? वी आर टेकिंग इन प्रोड्यूसर्स व्यू पॉइंट. वी आर नो लॉन्गर बॉदर्ड अबाउट कंज्यूमर. तो इसको भूल जाओ, ठीक है? इसको भूल जाओ. अब इसको हम मिलेंगे कब? जब हम मार्केट में जाएंगे. सो वी विल मीट द कंज्यूमर एंड डिमांड व्हेन वी गो टू मार्केट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना? बट उससे पहले वी हैव टू कवर अप, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सप्लाई इन द मार्केट. सप्लाई को हिंदी में हम पूर्ति भी कहते हैं, ठीक है? और सप्लाई के साथ साथ बिल्कुल वही चीज़ें करने वाले हैं. मूवमेंट अलोंग द कर्व, शिफ्ट इन द कर्व, राइट? एंड वी विल ऑल्सो लुक एट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. जो भी हमने कर्व्स बनाए वही सारे कर्व्स हम दोबारा भी देखेंगे. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इटसेल्फ. सो लेट्स बिगिन विद द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई फर्स्ट. डेफिनेशन क्या है सप्लाई की? सप्लाई is again quantity of commodity that a producer is ready and willing to produce at a particular price. Quantity of commodity इस बार क्या हो रही है? प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से देख रहे हैं ना? So quantity of commodity that a producer is willing to produce and he is willing to supply this to the market. He is willing to supply this to the market. क्या कर रहा है वो, है ना? He is willing to produce and he is ready to provide it in the market. But कहानी क्या है? At a particular price. So this is simply not quantity demanded. This is quantity supplied. This is now quantity supplied. So quantity supplied क्या है? This is quantity of commodity for which producer is ready and is willing to produce it and is ready to supply it in the market at a given price. ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? मान लीजिए अगर हम किसी प्रोड्यूसर के पास जाते हैं, ठीक है? लेट मी टेक यू टू अ प्रोड्यूसर. एक प्रोड्यूसर के पास चलते हैं. लेट्स से दिस पर्सन हु इज़ अ प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, चीनी की फैक्ट्री है इनकी, ठीक? सो हमने पूछा सर आपका प्रोडक्शन कितना है? व्हाट इज़ योर एंटायर प्रोडक्शन? सो ही टेल्स मी दैट माई एंटायर प्रोडक्शन ऑफ अ डे इज़ क्लोज टू 500 kgs. हम 500 किलो चीनी की पैदावार करते हैं एक दिन में. हमने कहा ठीक है सर, वेरी गुड. बट इफ आई आस्क हिम व्हाट इज हिज सप्लाई, राइट, हिज आंसर कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 to 500. इसका आंसर कुछ भी हो सकता है एक दिन का, राइट? क्यों? आंसर डिपेंड किस पे करेगा? द आंसर विल डिपेंड ऑन what is the price of sugar in the market, right? So अगर मैं कहता हूँ कि सर प्राइस जो है ना हाई चल रहा है, ₹40 per kg, कहेगा हाँ ले लो ना मुझसे, you can take in 480 kgs in a day. मैं आपको 480 किलो तक सप्लाई कर दूंगा. वेस्टेजेस वगैरह काउंटर करके 480 से लेके 500 के बीच में कुछ भी जो नंबर निकल के आएगा, आई एम रेडी टू सप्लाई यू एवरीथिंग. आप इसी प्राइस को कम कर दो, यू रिड्यूस डाउन द प्राइस, यू ब्रिंग इट डाउन टू 20 rupees per kg. अब कहेगा नहीं सर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, राइट? एंड देयर बाय आई विल बी रेडी टू सप्लाई ओनली 100 kgs नाउ. बस 100 किलो तक कर दूंगा ताकि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट निकल के आता रहे, राइट? आई एम रेडी टू सप्लाई लेस टू द मार्केट. तो इन्होंने क्वांटिटी सप्लाई कम कर दिया, ठीक है? सो आपको समझना है कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हेयर इज गोइंग टू बी प्राइस इटसेल्फ. प्राइस के बेसिस पे क्वांटिटी सप्लाई निर्धारित होता है. Guys, now let's look at what are the factors that affect supply.
मार्केट में सप्लाई को क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी, आप सप्लाई किस किस पर निर्धारित हो सकती है? सप्लाई कैन डिपेंड ऑन, इट कैन बी अ फंक्शन ऑफ प्राइस इटसेल्फ, प्राइस ऑफ कमोडिटी, वस्तु का दाम बढ़ रहा है, राइट। द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीजिंग, यू आर अ प्रोड्यूसर ऑफ सम कमोडिटी, राइट, लेट्स से शूज इटसेल्फ, and the price of shoes starts to increase. Now will you supply more or will you supply less? Obviously you will supply more. आपको लगेगा कि सर प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर रही है, मार्केट में सप्लाई बढ़ा देनी चाहिए, मेरे प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाएंगे, मैं ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ, राइट। सो प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज डिक्रीज विल ऑल्सो अफेक्ट सप्लाई ऑफ कमोडिटी इन द मार्केट. देन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, वेदर इट इज सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड, चाहे वो सब्सटीट्यूट गुड हो या कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो, राइट, दोनों का प्राइस आपका अफेक्ट करेगा सप्लाई को. देन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसे हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, है ना. अगर लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है, द कॉस्ट ऑफ लेबर इज इंक्रीजिंग और कॉस्ट ऑफ लेबर इज डिक्रीजिंग, रेंट बढ़ रहा है या रेंट घट रहा है, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट ओवर सप्लाई. मान लीजिए अगर लेबर का कॉस्ट बढ़ गया तो प्रोड्यूसर को क्या लगेगा, प्रोड्यूसर कहेगा यार ज़्यादातर पैसा यहाँ लग रहा है, राइट. सो ही विल लोअर डाउन हिज सप्लाई कॉम्पोनेंट, यस और नो. सिमिलरली रेंट बढ़ेगा तो भी लोअर डाउन करेगा सप्लाई कॉम्पोनेंट, राइट. देन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन, ST. पहले मेरे पास एक फैक्ट्री थी जहाँ पर ज़्यादातर लोग मैनुअल लेबर कर रहे थे, राइट, एंड देयर बाय द फैक्ट्री वॉज ऑपरेटिंग ओनली फॉर 8 आवर्स, 8 घंटे चलती थी दिन में. नाउ व्हाट आई हैव डन इज आई हैव रिप्लेस्ड मेजॉरिटी ऑफ द component of the work that was being performed by labor with machines ले आया हूँ, ठीक. और ये machines 24 घंटे काम कर सकती हैं. they will require spare parts and oiling, right. बॉल बेरिंग्स ऑल ऑयलिंग करो, आप 24 घंटे चलाते रहो मशीन को, कोई दिक्कत नहीं है. एंड यू विल रिक्वायर वेरी लेस नंबर ऑफ वर्कर्स टू ऑपरेट ऑन दिस मशीन, राइट. सो नाउ इंस्टेड ऑफ 8 hour वर्क सिनेरियो, आई कैन वर्क दिस मशीन्स फॉर 24 hours एंड द वर्कर्स आई कैन आस्क देम टू वर्क फॉर जस्ट 8 hour शिफ्ट्स, है ना. 3-4 वर्कर्स चाहिए तो 8-8 घंटे की शिफ्ट में लगा के काम करा लो उनसे. एंड नाउ 8 घंटे का प्रोडक्शन और 24 घंटे का प्रोडक्शन, और वो भी मशीन के द्वारा, है ना. तो ऑटोमेटिकली सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगा. Supply will increase because of state of technology. So state of technology can also have an impact over supply. Next आता है सरकार की policies, government policies. Now what happens due to government policies? मान लीजिए सरकार ने excessive regulation लगा रखा है, excessive regulation है, कोटा सिस्टम लगा दिया, प्राइस रेगुलेशन लगा दिया, बोला कि भाई इससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते मंथ का, राइट. सो बिकॉज ऑफ दिस excessive regulation, very less number of producers will be able to become a producer themselves. बहुत सारे लोग तो रिस्क से पहले ही बाहर हो जाएंगे, है ना. सिमिलरली अगर टैक्स का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दे, आपको लगेगा यार प्रोडक्शन करके कोई फ़ायदा ही नहीं, 60-70% तो सरकार ले जा रही है, राइट. सो गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ टैक्सेशन, एक्सेसिव रूल्स एंड रेगुलेशन इटसेल्फ कैन ऑल्सो अफेक्ट सप्लाई. ऑपोजिट इज ऑल्सो ट्रू, है ना. अगर सरकार की पॉलिसीज लिबरलाइज्ड हो, सरकार का यार सेल्फ अटेस्ट करके दे दो, एक खुद ही साइन करो, खुद ही भरो, लगा के जो है बस डिस्प्ले पे लगा दो, सेल्फ टेस्ट हो गया, ठीक है, तुम बन गए प्रोड्यूसर, कोई दिक्कत नहीं है. यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ लाइसेंस फ्रॉम एनी गवर्नमेंट ऑफिस. टैक्स रेट्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी लो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, राइट. सो अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलैक्सड हो, ऑटोमेटिकली सप्लाई क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है. सो गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन ऑल्सो अफेक्ट सप्लाई. एंड लास्ट वी विल फाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म. सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म ना. ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग. I'm sure you must have encountered certain firms which are more like luxury brands. आपने देखा होगा कुछ firms को, वो अपने आप को luxury brands के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, है ना. जैसे कि आपका Rolex हो गया, BMW, Audi हो गया, राइट. इनका मानना है that our goods, right, they are more like luxury goods and thereby they should not be in the hands of everyone. सबके लिए नहीं बना रहे हैं, सबके हाथों में नहीं हो सकती ये वस्तु, सबके हाथ में होगी तो कॉमन होगी, राइट. इट इज नॉट अ लग्जरी ब्रांड एनी मोर, राइट. एंड देयर बाय दीज लग्जरी ब्रांड्स दे विल ट्राई एंड कीप द क्वांटिटी सप्लाइड टू बी लो. अपना जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो मार्केट में लो रखेंगे, तभी तो हायर प्राइसेस चार्ज कर पाएंगे, राइट. सो दे विल कीप द क्वांटिटी सप्लाइड टू बी लो इन द मार्केट. क्वांटिटी सप्लाई लो रखा, ऑटोमेटिकली प्राइसेस
इंक्रीज रखे और अपने आप को प्रोजेक्ट किया लग्जरी ब्रांड के फॉर्म में, राइट। ऑन द अदर हैंड यू विल फाइंड दैट सम ब्रांड्स दे आर प्रोजेक्टेड फॉर कॉमन मैन। वो चाहेंगे कि इतना ज़्यादा विजिबिलिटी हो, इतनी ज़्यादा मार्केट में वस्तु दिखे कि लोग बेसिक कमोडिटी से उसको रिप्लेस करना शुरू कर दें, है ना। जैसे कोको कोला है, तो कोको कोला ब्रांड अपने आप में कहता है कि भाई हमारे अच्छे दिन तो तब होंगे जब एक आदमी पानी की बोतल की जगह कोको कोला खरीदेगा, है ना। विच मीन्स दे आर ट्राइंग टू रिप्लेस वाटर बॉटल विद अ कोको कोला बॉटल, ठीक है, कि भाई इतना चीपर है हमारा कोको कोला, इज चीपर देन इवन बाइंग अ वाटर बॉटल, राइट। तो वही कहानी है ना कि वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि ये कॉमन मैन के लिए है, दैट anyone who is drinking water can replace this with Coca-Cola and thereby they will keep the quantity supplied to be very high. मार्केट में विजिबिलिटी दाएं बाएं सब जगह लगेगी, है ना। एडवर्टीजमेंट दिखाएंगे, खूब एडवर्टीजमेंट करेंगे, आपको इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में दिखेगा कि विजिबिलिटी कंपोनेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर हियर, है ना। एंड देयर बाय द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इटसेल्फ, मतलब क्या फर्म का ऑब्जेक्टिव है, उसका अपना उद्देश्य क्या है कि अपने आप को एक कॉमन मैन के लिए ब्रांड के फॉर्म में प्लेस करना है या फिर लग्जरी ब्रांड के फॉर्म में प्लेस करना है, दैट इटसेल्फ कैन हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ओवर द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। ओके, सो इस तरीके से हम लिख सकते हैं अपना सप्लाई फंक्शन। ये बन गया मेरा सप्लाई फंक्शन, दैट इट इज अ फंक्शन ऑफ पी, पी आर, एफ सी, एस टी, जी एन ओ, ये सारे पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा। गाइज नेक्स्ट वी कम टू लॉ ऑफ सप्लाई, है ना। बिल्कुल सिमिलर सा एक्सरसाइज है जो हमने लॉ ऑफ डिमांड के साथ किया, ठीक है। सो आई जस्ट रोट द सप्लाई फंक्शन। सो हम क्या करना चाहते हैं, दिस सप्लाई फंक्शन दैट आई रोट डाउन, supply of commodity, which is a function of price of related good, factor cost, so on and so forth, right? So I will keep all these factors as constant. इन सब factors को constant कर दो, and we want to find out the relationship between price of the commodity and supply of the good itself. Supply और price के बीच में क्या relation है, ठीक। So the law of supply, it states, if you are a producer you will relate to this, right, that whenever the prices of a good will increase in the market, considering all other factors remain constant, बाकी सारे के सारे factors constant है, factor cost same है ना, state of technology same है, government की policy same है, objective same है, everything remains same. The only thing that changes is the price of the good in the market. वस्तु का दाम बढ़ गया है, कोको कोला की बॉटल का प्राइस जो है मान लीजिए वो 30 से इट हैज़ बिकम 40 रुपीज़। नाउ कोको कोला विल सप्लाई मोर ऑफ कमोडिटी और लेस ऑफ कमोडिटी, इससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा, भाई प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है यार, फैक्टर कॉस्ट सेम है ना, राइट। सो इफ प्रॉफिटेबिलिटी इज इंक्रीजिंग, ऑटोमेटिकली क्वांटिटी सप्लाइड इन द मार्केट विल ऑल्सो इंक्रीज। एस लिख दो या क्वांटिटी सप्लाइड लिख दो, एक ही बात है, क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज। And if prices of a commodity in the market decreases, then quantity supplied will decrease or supply will decrease. Now what does this tell you? This tells you that quantity supplied is directly proportional to prices. Quantity demanded inversely related था, लेकिन quantity supplied directly related है prices से, ठीक, कि जब जब प्राइसेस इंक्रीज करेंगे ऑटोमेटिकली इंसेंटिव बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और इसीलिए सप्लाई भी बढ़ेगी कमोडिटी की, कीपिंग इन माइंड दैट अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, कीपिंग इन माइंड दैट अदर फैक्टर्स दे रिमेन कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट रहने चाहिए, दे शुड रिमेन कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सप्लाई, और दिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज movement of this can also be movement of supply along the curve, ठीक है। सो इसी को हम कह देते हैं movement along the curve, movement along the curve। अभी आएंगे इस पर भी, movement along the curve पर भी, है ना। सो दिस इज माई लॉ ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, हमने वही जो अभी रिलेशनशिप लिखी क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइसेस की, वी कैन राइट इट इन टैबुलर फॉर्म, इसी को टेबल की फॉर्म में लिख रहे हैं,
वी आर राइटिंग इट इन टैबुलर फॉर्म. ठीक है ना, इसे टेबल की फॉर्म में लिख रहे हैं हम इसे. सो एज प्राइसेस इंक्रीजेज, जैसे जैसे नीचे हम जा रहे हैं वैसे वैसे प्राइसेस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं. एंड अकॉर्डिंगली आई कैन सी दैट माई सप्लाई ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी सप्लाइड विल ऑल्सो कीप इंक्रीजिंग. क्वांटिटी सप्लाइड विल ऑल्सो कीप इंक्रीजिंग. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज सप्लाई स्केड्यूल. अब इसी सप्लाई स्केड्यूल को हम जो है वी विल ट्राई एंड ड्रॉ इट. इसको हम सप्लाई कर्व के फॉर्म में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सो लेट मी ट्राई एंड ड्रॉ दिस फॉर यू. मैंने क्या किया, मैंने प्राइसेस को वाई एक्सिस पर ले लिया और क्वांटिटी सप्लाइड है इस बार, क्वांटिटी सप्लाइड ऑन माय एक्स एक्सिस, राइट. सो ये प्राइसेस इंक्रीज कर रहा है, दिस इज माय क्वांटिटी सप्लाइड. सो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप विल आई गेट. भाई अगर प्राइसेस लो हैं, प्राइसेस अगर लो हैं, राइट, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी लो ही होगा. ठीक, सो ये आ गया पॉइंट. एंड व्हेन प्राइसेस इंक्रीज माय क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो बी हायर. क्वांटिटी सप्लाइड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा. ठीक, सो क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेस एंड thereby this is going to be the shape of my curve. ये होगा शेप कर्व का, राइट. सो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व देखने को मिल रहा है. आई गेट एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. दिस इज कॉल्ड एज सप्लाई कर्व. दिस इज कॉल्ड एज सप्लाई कर्व. सप्लाई कर्व, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सप्लाई कर्व. नाउ गाइज वी कैन कैलकुलेट द स्लोप ऑल्सो ऑफ दिस कर्व. हम क्या कर सकते हैं, हम इस कर्व का ना स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं. स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इफ आई वांट टू कैलकुलेट द स्लोप, माय स्लोप इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. वाई पर है प्राइस, सो डेल्टा प्राइस बाय डेल्टा क्वांटिटी सप्लाइड. डेल्टा क्वांटिटी सप्लाइड, वही काम करो, 2 पॉइंट ले लो, एनी रैंडमली वी कैन टेक 2 पॉइंट्स. ठीक है, so this is let's say my P1, this is let's say my P2. Accordingly I have Q1, I have Q2. ठीक है, so delta P by delta QS का मतलब क्या हुआ, P1 minus P2 divided by Q1 minus Q2. अब यार Q1 भी बड़ा है, Q1 is also greater, P1 is also greater, which means my slope will come out to be positive. My slope will come out to be positive, और slope positive ही आ रहा है. अब देखो, है ना, डायरेक्टली 45 डिग्री के आसपास है अभी कर्व का, पॉजिटिव ही है, अपवर्ड स्लोपिंग है. सो द स्लोप इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव इन इटसेल्फ. सो दिस इज कॉल्ड एज सप्लाई कर्व. अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा. याद रखिएगा, जैसे जैसे क्वांटिटी, जैसे जैसे मेरा प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाइड विल ऑल्सो कीप इंक्रीजिंग, और स्लोप इसका पॉजिटिव निकल के आएगा. इट विल बी डेल्टा P by डेल्टा QS. Guys, we'll continue the remaining topics in the next part.